Okay, so let's start the next topic, that is limitation of octet rule. Okay, till now we have studied about the formal charge and all the different properties for the covalent bonds. Okay, and after studying this we have got that idea that covalent bonds are what? They are the sharing of electron, and after that we have seen that we cannot easily define them. So for defining them, what we were requiring was that how they were possessing the charges there, or how they were possessing the oxidation state there. For that we have calculated what? Formal charge. Okay, that is clear to everybody. The formula for formal charge, it is clear. Okay, so now let's move to the next topic, that is what is the limitations. After seeing some things, we have found out that it is also not fully fledged rule that on the basis of which we can understand how the bonds are being formed out there, or how they are stable, why they are stable. It is still not clear to us. Na? There is some more contradictions is been left out there. Okay? So that contradictions will be followed up in the next theories, which we are going to study further in this chapter. But what are the limitations which are occurred out here? Due to which we are what we are doing, we are saying that some of the limitations is been present in the octet rule also. इसी का दूसरा नाम क्या था? लुईस कोसेल लॉ. ये भी 100% प्रूफ नहीं है. 100% प्रूफ नहीं है, इसमें भी कुछ गलतियां निकलेगी हम लोग. वही हम लोग चीज अभी पढ़ने वाले हैं कि उसका क्या लिमिटेशन है. सो लिमिटेशन नंबर 1. लिमिटेशन नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन. फॉर्मेशन of compounds involving hydrogen. Okay, so here we will see that when hydrogen is forming compounds, so what is the nature of hydrogen? क्या नेचर रहता है बेटा हाइड्रोजन का? वो लूज करता है कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन? सोचो, what is the nature for hydrogen? अच्छा, उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम. What is the noble gas configuration for helium? 2. 1s2 is there, na? Okay, so according to octet rule, what was required out there? That minimum 8 electrons must be present in the outermost shell. लेकिन इस कंडीशन में ऐसा हो रहा है? नहीं होता ना. लिथियम की कंडीशन में ऐसा होता है? वो भी तो 2 एक्वायर करता है ना, एक रिलीज करता है और 2 एक्वायर करता है. ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशंस में यहाँ पे आके ऑक्टेट रूल क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है. क्यों इन लोग 2 ही में सेटिस्फाई हो जा रहा है? इन लोग 8 क्यों नहीं ले रहे? उस चीज को वो समझा नहीं पा रहा. आएगा समझ में? ओके, सो राइट डाउन इन इट. हाइड्रोजन does not require to complete its octet okay, to achieve its nearest inert gas configuration. Hydrogen does not require 8 electrons in its outermost shell to attain inert gas configuration. है ना, यही तो रूल है ना. ओके, तो कितने में कर लेते बेटा वो? व्हाट इज द रूल फॉर हाइड्रोजन? इट रिक्वायर्स only 2 electrons for attaining inert gas configuration. Okay, for attaining inert gas configuration, it is required only 2 elements. So it is a contradiction with octet rule. And octet rule is unable to make this particular phenomena understandable there. नहीं बता पा रहा ना क्यों वो 2 ही में कंप्लीट कर ले रहा है, क्यों उसको 8 की जरूरत
नहीं पढ़ रही, ये नहीं बता पाता, ठीक है। सो दिस इज एन कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक formation of compounds like BeCl2, BCl3, AlCl3. Formation of compounds like BeCl2, BCl3, AlCl3, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रक्चर से बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। Be, the outermost electronic configuration for beryllium is 2, 1s2 2s2, है ना। तो outermost इलेक्ट्रॉन उसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। कितने क्लोरीन से जुड़ रहा है वो, फॉर्मूला क्लास से देखो कितने क्लोरीन से जुड़ रहा है, 2 क्लोरीन, BeCl2, यानी 2 क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद 2 क्लोरीन। So the electronic configuration for chlorine is like this, and it will form a bond here with 2 electrons. Here also bond. क्या बेरिलियम का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं क्या, ऑक्टेट इज कंप्लीटिंग आउट देयर फॉर बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कहाँ 8 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन होता है। क्या 8 वाला रूल फॉलो हुआ क्या यहाँ पे, नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्ट करके ये, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऐसा, ठीक है। सिमिलरली BF3 कर दो, Cl3 मत करो, BF3 कर दो। So here for beryllium 3 free electrons are there in the outermost shell, 1s2 2s2 3p1, sorry 2p1, ये रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 3p1 ये रहता है, ठीक है। तो इस कारण से हमारे पास जो आउटर शेल रहेगा उसमें कैसा आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो यही तीनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन भी करेंगे। तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 and 7 bond formation, fluorine 1 2 3 4 5 6 and 7 bond formation, fluorine 1 2 3 4 5 and 6। बोरॉन तो कितना हो रहा है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी बनता है। तो इसको समझा नहीं पा रहा है क्यों ऐसे में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना लो, नीचे में एक लाइन लिख लो, ये स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद नीचे लाइन लिखना। This type of compounds are termed as, this type of compounds are termed as, this type of compounds are termed as electron deficient compounds. This type of compounds are termed as electron deficient compounds. Electron deficient compounds. Here octet of central atom, here this type of compounds are termed as electron deficient compounds. Here octet of central atom is not completed, which creates contradiction with octet rule, which creates contradiction with octet rule, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट बीन कंप्लीटेड फॉर द सेंट्रल एटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक formation of compounds like PCl5, ठीक है, PCl5, SF6, IF7, SF
स्ट्रक्चर देखते हैं फॉर PCl5, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर PCl5? क्या होता है? नंबर 15 पे कितना हो जाएगा? 2,8,5 है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे? 5 1 2 3 4 5। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 3 जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं वहां पे। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास में? 5 है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन आ गया। तो अब वो जुड़ेगा कैसे? 5 क्लोरीन जोड़ना भी तो है ना, लेकिन तुम्हारे पास कितने खाली है? 3 ही खाली है, उसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो कैसे जोड़ोगे यहाँ पे? ठीक है, तो उसके जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखना। Cl, ये तो ठीक है, ये Cl को दे दिया और ये 8 ऐसा, ये 8 हो गया। ये क्लोरीन है। फास्फोरस ने अपना वहां पे डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक शेयर कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? एक क्लोरीन के साथ में 8 इलेक्ट्रॉन वाला इधर बना लिया उसने। एक क्लोरीन के साथ में शेयर किया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया। 2 क्लोरीन्स अपने लोन पेयर को शेयर करेंगे किसके साथ में? फास्फोरस के साथ में। लाइक दिस, यस, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लोरीन रहेगा जो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद द, कितने क्लोरीन होगा देखो? 5 क्लोरीन, ठीक है। अब फास्फोरस देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसके पास? अच्छा है, 3 ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 8 चाहिए थे, कितने मिल गए उसको? लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड है, पॉसिबल था क्या? क्यों है? ऑक्टेट रूल नहीं समझा पा रहे। हमारे बात समझ में? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसा ऐसा बनता है, इसको क्यों नहीं समझा पा रहा? व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन हियर? इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्यों बन रहा है? नो आंसर इज देयर फॉर इन द ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो SF6 के लिए देख लो। SF6 में भी ऐसी रहेगा, 6 उसमें बनेंगे, देखो ऐसा, सल्फर 1 2 3 4 5 and 6, क्लोरीन फ्लोरीन 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 और यहाँ पे एक और क्लोरीन। कितने होगा देखो तो सल्फर में भी बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 12 ही आ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन। क्यों बॉन्ड बन रहा है उसको समझा नहीं पा रहा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज बीन ऑकर आउट, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, स्ट्रक्चर बना लो दोनों। SF6 और किसके लिए? और योर PCl5। PCl5 and SF6। जैसा पीछे वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक्स्ट्रा है इनके पास। सेंट्रल एटम के पास में उस कंडीशन में BCl2 के कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स वेयर लेस फॉर कंप्लीटिंग इट ऑक्टेट, सो देयरफॉर वी विल कॉलिंग इट डेफिशिएंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा देयर, सो देयरफॉर दे विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ठीक है। Okay, so write down here one line. In the above compounds, more than 8 electrons, in the above compounds, more than 8 electrons are present. More than 8 electrons are present in the valence shell.
which violates the octet rule. Which violates the octet rule. And the last one is the last formation is the formation of noble gas compounds with noble gases. Formation of last and fourth formation of compounds by noble gases. Formation of compounds by noble gases. सुने होगा कि नोबल गैसेस कंपाउंड बनाते हैं, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना. व्हाट वी आर स्टडीइंग दैट नोबल गैसेस आर द एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस. बट द लोअर नोबल गैसेस, दैट इज xenon and radon, they are the elements or they are the noble gases which can react with other elements and can form compounds. Okay, Xe, some examples are XeF2, XeF4, XeF6. These are some of the examples which are formed by noble gases. So octet rule is also unable to explain the formation of such compounds. Okay, so hence these also contradict with the octet rule. Okay, so write down compounds like XeF2, XeF4. समझ में आ रहा है कैसा लिखोगे? XeF2, XeF4, XeF6, etc. Compounds like this are formed where xenon is a inert gas, where xenon is a xenon is a rare gas. Xenon is a rare gas. Inert gas which contradicts with the octet rule. If the outermost shell there is containing 8 electrons, then why it is reacting with any other element? Why it is forming compounds there? According to the octet rule, it must not react, but it is reacting and forming compounds. Okay, so this is the contradiction with the octet rule. These were the limitations for the octet rule. Okay, write down next. Valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. In short form, it is termed as VSEPR. Valence shell electron pair repulsion theory. One of the important theory, VSEPR. VSEPR theory बोलते हैं इसको, वेस्पर theory भी बोलते हैं इसको. Okay, valence shell electron pair repulsion theory. So write down the statement for this theory. Statement: the electron pair surrounding the central atom, the electron pair surrounding the central atom, the electron pair surrounding the central atom repel one another, and move so far apart from each other that there are no further repulsion,
no further repulsion between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. ठीक है, दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है वो पढ़ो एक बार, फिर समझाता हूं उसको, पढ़ो अपने से एक बार। क्या बोल रहा है उसमें? द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम repel one another and move so far apart from each other that there are no further repulsions present between them. ठीक है, as a result the molecules has minimum energy and maximum stability is been achieved out there. This is what? This is the valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, तो इसमें बोलना क्या चाह रहा है वो, जो भी सेंट्रल एटम है, जैसे एग्जांपल यहीं पे ले लो आप, फास्फोरस को सराउंड कौन करके रखे हैं? 5 क्लोरीन सराउंड करके रखे हैं। ठीक है, तो वो पेयर ही बनाए ना, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ऐसा टाइप का चीजें दिख रही है ना यहाँ पे। ये लोन पेयर से देखो, क्लोरीन के ऊपर जो बॉन्डेड नहीं हुआ है, ठीक है, और जो फास्फोरस के साथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं वो क्या हो गए? सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये आपस में सेम चार्ज रख रहे हैं ना। जो बॉन्ड पेयर बने वो भी सेम चार्ज रख रहे हैं, है ना, और जो लोन पेयर रखे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? सेम चार्ज रख रहे हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। लाइक चार्जेस व्हाट दे डू? They repel each other, and unlike charges what they do? Attract each other. But here they are all like charges only, they are all electrons only. So what they will do? They will start to repel each other. ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब तक रिपेल करेंगे? They will repel each other, and due to this reason they will become moving far apart from each other. They will start to move far apart from each other. एक दूसरे से दूर होना चालू होंगे। कब तक दूर होंगे? Until the repulsion becomes minimum. Okay, until the repulsion becomes minimum. At that till point they will move from each other. ठीक है, and due to this reason the shape of the molecules which has been formed out there, they does not generally look like that we are thinking in our mind. जो हम सोचते हैं ना कि ऐसा सीधा सीधा होगा, नहीं होता असल में। उसके कारण क्या कर जाते हैं? रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे नहीं भाग रहे, उसके कारण उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 3D में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल ये ट्राइपॉड जिसके ऊपर मैंने भी रखा हुआ है, ये एक एग्जांपल बन जाएगा आपका किसके लिए? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए एग्जांपल बन जाएगा। दिख रहा है ये ट्राइपॉड जो रखा हुआ है मैंने, जिसके ऊपर कैमरा लगा के रखा है मैंने आपका। ठीक है, नीचे में 3 लेग्स हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ये 3 लेग्स है इसके, तो ये 3 लेग्स जो हो जाएंगे एक एटम बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा, और ये एलिमेंट्स आपस में ट्रायंगुलरली जॉइन रहेंगे, and one atom will be present out here. तो कैसा दिख रहा है? पिरामिडल नहीं दिख रहा स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पिरामिडल। अब मान लो एक ऊपर एलिमेंट था, like if only one element has been present below also, then it will be called as bipyramidal. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? Because due to presence of repulsion between that bond, and in order to decrease that repulsion, they are moving away from each other. क्यों मूव कर रहे हैं? ताकि अपने बीच की एनर्जी, जो अपने बॉन्ड पेयर्स हैं, जो अपने लोन पेयर्स हैं, उनके बीच की एनर्जी क्या कर सके? मिनिमम कर सके। और जितनी उनके अंदर में एनर्जी मिनिमम रहेगी, उतनी ज्यादा उनके अंदर क्या रहेगी? स्टेबिलिटी विल बी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज टर्म्ड एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, VSEPR थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ उसके बारे में पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। Assumptions for VSEPR theory. Assumptions for VSEPR theory. Assumptions for VSEPR theory. Number 1.
assumptions for BSCPR theory. Number 1, the shape of a molecule. The shape of a molecule contains only two atoms. Contains only two atoms in a linear structure. Okay, if you are forming a linear structure like this, A bonded with B bonded with A, ठीक है, तो यहाँ पे एक B एक A से एक A से ऐसा करके बॉन्ड है। तो अगर मान लो इसको अकेले A और B को देखोगे तो मात्र दो एटम्स है कि नहीं, यहाँ टू एटम्स आर ओनली देयर, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर स्ट्रक्चर। सो क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, फॉर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, फॉर molecules containing 3 or more atoms, for molecule containing 3 or more atoms, one of the atom, अच्छा इसको ऐसा मत करो, इसका ऐसे ही बस A और B बस, one of the atom will be सेंट्रल एटम, क्योंकि इस कंडीशन में अगर मैं 3 ले लूंगा तो ये बी वाला सेंट्रल एटम बन जाएगा ना वहां पे। ठीक है, तो जहां 3 या 3 से ज्यादा एटम्स आ गए, इफ देयर आर प्रेजेंट 3 और मोर एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, देन इन दैट पर्टिकुलर एटम वन एटम विल एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। उसमें एक एटम कैसा रहेगा, हमेशा एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम देयर। ओके, वन एटम विल बी सेंट्रल एटम टू विच other atoms are linked, to which other atoms are linked. Third, if similar atoms are attached to central atom, if similar atoms are attached to central atom and is surrounded by bond paired electrons only, the repulsion between them is similar. Hence, shape of molecule is symmetrical. The shape of molecule there will be symmetrical. क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना इसमें। Similar type of atoms are connected to the central atom. Similar like atoms है, ज्यादा चेंजेस नहीं है उनमें, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में उनके बीच में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, their properties are similar to each other. Then in that case the shape of that particular molecule which is found out there, it will be having which kind of shape, symmetrical shape. मतलब अगर उसको बीच में से काटोगे तो दोनों तरफ कैसा रहेगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर। अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर बीच में से काटोगे तो इधर से भी एक छोटा ट्रायंगल, इधर से भी एक छोटा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वैसा कुछ सिमेट्रिकल शेप वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उनके प्रॉपर्टीज हैं जो जुड़ रहे हैं आपस में, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बहुत कम है, जो सेंट्रल एटम उसका कम है, या बीच वाले का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और अगल बगल वालों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बहुत कम है। तब उस कंडीशन में शेप कैसा हो जाएगा,
थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल टाइप का शेप बनेगा जिसको अपन सिमेट्रिकली समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये एक रूल। लास्ट लिखो, द central atom linked to different atoms, the central atom linked to different atoms the central atom linked to different atoms or is surrounded by bond pair or lone pair, central atom linked to other atoms or surrounded by bond pairs and lone pairs. BP means bond pair, LP means lone pair there. Okay, bond pairs and lone pairs, the repulsion between them is different. The repulsion between them is different. क्या डिफरेंस रहता है? The repulsion between the lone pair and lone pair, it will be highest. क्या रहेगा? The repulsion between the lone pair and lone pair, it will be highest as comparison to that of the repulsion between lone pair and bond pair. ठीक है, as comparison to that of the repulsion between lone pair and a bond pair. अच्छा, bond pair lone pair समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाकियों को? क्या होता है bond pair और lone pair? पहले जब देखा नहीं होगा, आ रहा है बेटी? हाँ, पहले बार आया, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। बाकी लोग को आ रहा है lone pair bond pair? कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो भी तो पेयर बना रहे हैं ना, so that type of electrons is been termed as bond pair. और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो है जो शेयर नहीं हो रहे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा दैट विल बी हाईएस्ट. द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी लोवेस्ट एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन, एंड द लोवेस्ट रिपल्शन विल बी बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ठीक है, so this was for today. We will continue further in our next class. So till then, thank you to everybody.